हे राधे। भक्ति अनुशीलन सोपान। भक्ति अनुशीलन नो सेम टॉपिक। प्रथमतः वक्तव्य है जे शरीर मन समाज आध्यात्मिक सद्भाव रक्षा व पुष्टि न करते पारले अधिकतर उच्च चेष्टा जे भक्ति तार कार्य कि रूप हेब। एथिपाई सुरक्षा दरकार, सुस्थता दरकार, शरीर मनर आध्यात्मिक जति सुस्थता। पक्षांतरे यदि वर्णाश्रम धर्म परित्याग पूर्वक स्वेच्छाचार ग्रहण करा जाए ताहले से सकल शारीरिक और मानसिक चेष्टा अत्यंत प्रमत भाव में यथेच्छाचार रत करेंगे। जो मैंने वर्णाश्रम धर्म को परित्याग कर दूसरी ताहले जो शरीर और जो मन जो सामाजिक क्रिया जिते सब रही सब विभ्राट सृष्टि हो सब सर्वदा जीव को कदर्य विषय रत कर सब शास्त्र बहिर्भूत कार्य जीव सब रत और भक्तिर कौन प्रकार लक्षण उदित हेनी। भक्तिर लक्षण तेणु वर्णाश्रम धर्म गोटे पाहच कहगला। वर्णाश्रम धर्म को पालन कर विशेषकर शरीर सुस्थता रखियो, मनर सुस्थता रहियो, समाज सामाजिक क्रिया किसी रही आध्यात्मिक सत्ता को रक्षा करियो। ऐसु कले धीरे धीरे भजन रे उन्नति हम। अतएव वर्णाश्रम धर्म कियत परिमाणे दीर्घसूत्री हईले भक्ति साधनर अनुकूल रूपे स्वीकार करा कर्तव्य कहले। ये वर्णाश्रम धर्म गोटे भक्तिर अनुकूल रूप से स्वीकार करा जाए किंतु भजन विच्युत ही वर्णाश्रम पालन करियो से नरकगामी। हरिभजन परायण हो वर्णाश्रम पालन करिया दरकार। गीतारे कहते श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनिष्ठिता स्वभाव निरत कर्म कुर्बन अपनति किल विषम। श्रेयान स्वधर्म विगुण, स्वधर्म ही सब श्रेष्ठ कहगला। परधर्म भयावह बिल कह स्वभाव नियत कर्म, स्वभावयुक्त कर्म को पालन करिया दरकार। कुर्बन आपनत किल विषम, सब किसी नष्ट हो अनर्थ। स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म। तेणु वैदिक भक्तिर अनुशीलन क्रमे ताहार दीर्घसूत्री क्रमशः खर्ब हो पड़े। धीरे धीरे यदि भक्ति अनुशीलन करिवो धीरे धीरे वर्णाश्रम धर्मर जो से रही किस दिन पर धीरे धीरे से शिथिलता हो केवल भजन ही रही। प्राथमिक स्तर यू आवश्यकता रही। प्रथमे वर्णाश्रम धर्म को सुंदर रूपे पालन करी करी प्रभु पदिष्ट पंच प्रकार भक्तिर समागत अनुशीलन करिवे। प्रथम वर्णाश्रम धर्म को पालन करियो। प्रथम स्तर रे कहगला सुंदर रूप पालन करी शास्त्रानुमोदित भावे। तापर ठाकुर जो उपदेश देइछंती भक्ति की जाजन करियो।
ଉକ୍ତ ଧର୍ମର ଯେ ଅଙ୍ଗ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିକୂଳ ହୁଏ, ଯେ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ରମଶଃ ପରିତ୍ୟାଗ କରତେ করতে থাকিবে। এই ধর্মরে যে যে অঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল হব তাকে ত্যাগ করা দরকার। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিও যদি ভক্তির প্রতিকূল কিছু হচ্ছে তাকে ত্যাগ করদা দরকার। কেন ইয়ে আমার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে হরিভজন করা। হরিভজন করা বর্ণাশ্রম ধর্মর অনুকূলতা গ্রহণ করা দরকার। যদি প্রতিকূল হচ্ছে সেটি ত্যাজ্য কুয়াগলা। ଅବଶେଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମଟି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂତ ହୋଇଆ ପରମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଦାସ ସ୍ୱରୂପରେ କର୍ମ ଭକ୍ତିର ପରସ୍ପର ଅବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ থাকিବେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା ଭକ୍ତିପୂତ ହୋଇଆ, ଏ ଧର୍ମ ବି ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। ତା ପରମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଦାସ ସ୍ୱରୂପେ କର୍ମ ଭକ୍ତିର ପରସ୍ପର ଅବିରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ থাকে। এই କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଅବିରୋଧ ମାନେ ବିରୋଧ କିଛି ରହିବନି। ଏଠି କର୍ମ ବି କରିବ, ସେ ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳତାରେ କର୍ମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକେ କର୍ମବନ୍ଧନ, ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକେ କର୍ମବନ୍ଧନ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ବି ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅକିଞ୍ଚନତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଭକ୍ତିପୂତ ଶୂଦ୍ର ଜୀବନର ପାରମାର୍ଥିକ ସମତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବ, ତାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନତ୍ୱ, ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ ମନେ କରିବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗର୍ବ ରହିବନି, ବରଂ ଶୂଦ୍ର ଜୀବନରେ ପାରମାର୍ଥିକ ସମତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏହି କଥା ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚତା କିଛି ରହିବନି ଯଦି ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରିବ। କାହିଁକିନା ଅପିଚେ ଶୂଦ୍ରାଚାର ଭଜତ୍ୟ ମାମ୍ ଅନ୍ୟଭାଗ ସାଧୁରେବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତ ସହ। ଶୁଦ୍ଧାଚାର ସୁଦୁରାଚାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଭଜନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଇଟା ଜାତି ବିଚାର ସେ ନଥାଏ। ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନରେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଯଦିଓ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ। ଏଇଠି ହରିଭଜନ ଯିଏ କରେ ସେ ହିଁ ବଡ଼। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅକିଞ୍ଚନତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଏସବୁ ଅକିଞ୍ଚିତ କରିକି ଅନୁଭବ କରିବ ସେ। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଭଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସମତା ବିଚାର ଆସିବ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯିବେ, ଏଠି କୌଣସି ଭେଦଭାବତା ରହିବନି, କାହିଁକିନା ହରିଭଜନ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଶୂଦ୍ର ଜୀବନ ଭଗବତ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳିତ ହୋଇଆ ଅକିଞ୍ଚନୀଭୂତ ବିପ୍ର ଜୀବନର ସାମ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ମନେ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଶୂଦ୍ରମାନେ ବି ଯଦି ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ଭଗବତ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କିଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନୀଭୂତ ବିପ୍ର ଜୀବନର ସାମ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନୀଭୂତ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ ହେବେ। ଏମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ତୁଳନୀୟ ସମତୁଲ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ହରିଭଜନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନଥାଏ। ହରିଭଜନରେ ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦ୍ଭକ୍ତ ସପଚ ପ୍ରିୟ କୁହାଗଲା। ତସ୍ମୈ ତତ୍ଗ୍ରହଂ ଯଥାଇ ଅହମ୍ କୁହାଯାଇଛି। তখন বৈষ্ণব ভ্রাতৃভাবের পবিত্রতা
चतुर्वर्णर जीवन के एक उज्जवल करी। यही कहीं कहगला ये जो वर्णाश्रम धर्म विभिन्न प्रकार जो संकीर्णता अच्छी, विभिन्न प्रकार भेदभाव रही, उच्च नीच सब विचार रही, ये सबू ये समस्ते जदि पारमार्थ्य जो से समस्ते यदि हरिभजन करिए ताहले एमानकर भेदभाव ये सब दर्शन दृष्टिकोण सब नष्ट हो बरं समस्ते एक तात्पर्य पर कृष्ण तात्पर्यमयी कृष्ण सुखर पाई ही से समस्ते एकत्रित हो मिलित हो हरिभजन करेंगे। यही हूँ पारमार्थ्य जगतर विचार वैष्णव जगतर धारा यहाँ ये कौन सी भेदभाव न था ये सब आस गोटे वैष्णव भातृभाव समस्ते वैष्णव भाईचारा सृष्टि हम ये गोटे वैकुंठ जीवन प्रारंभ प्राय बोध होते थकिवे तापरे वैकुंठ जीवन प्रारंभ प्राय वैकुंठ जीवन माने गोलोक जीवन जाओ कहला पारमार्थ्य जगत भक्ति जीवन परमानंद जगत रे जो जीवन जो प्रकार गोलोक सब रही सब नित्य सिद्ध महाभागवत माने से जीवन आरंभ प्राय बोध होते थके धीरे धीरे अनुभव हो जो मान मन भीतर संकीर्णता भेदभाव उच्च नीच ये सब भाव सब दूरीभूत हो जो मैंने समझते कि भगवान कर अंश भगवान कर भक्त बोली ग्रहण कर वैष्णव प्रीति रही जो मानकर अंतकरण रे से मानकर ये सब वैकुंठ जीवन प्रारंभ अनुभव हो गोटे साधक जीवन साधु जीवन जहाँ कहगला सीठी अनुभव हो तांकर देहात्माभिमान जनित उपद्रव खर्बित होइले ये देह प्रति जो अभिमान अच्छी एथिरे विभिन्न प्रकार उपद्रव जो होची देहर अभिमान ना किए निजको बड़ मन करछि किए श्रेष्ठ मन करछि किए निजको सबुठ भल मन करछि बुद्धिमान ज्ञानी धनवान रूपवान यही प्रकार विभिन्न प्रकार अभिमान करी जगत रे बहुत उपद्रव करछन्ति अहंकार गर्वित होइकरी एसो नष्ट हो एसो खंडन जदि हो ताहले जीव समूह परम साम्य सुतरांग संभव से जीव जगत रे परम साम्यता हवाश्य समस्त की समान बोली से भाव ता नजर कई उच्च नुहे कि कई नीच नुहे केतल हम जो देहात्म देह अभिमानटा नष्ट हो एथि महात्मा मान गुरु महाराज का प्राय समत देखाए तू बोली संबोधन करना छोट मान आसल तुम बोली कहते तार कारण कौन तांकर विचार से प्रकार थिला समस्त भितर से दर्शन थिला तांकर छोट मन करते स्नेह रे क्या कही पारे अलग कथा सीनियर जूनियर मान को स्नेह डाकवाटा किंतु जन को छोट मन करी से सब संबोधन क्यों करना कहीं चित्ती हो प्रकार साम्य भाव जीव समूह के परम साम्य तांक विचार किए छोट नुहति किए हेय नुहति किए नगण्य नुहति बरं जे भजन करना प्रति और कृपा थाए अनुकंपा थाए देह अभिमान जनित उपद्रव रही से सारा जगत को कृष्ण संसार भावियो समस्त एरिया कौन भेदभाव किसी रही समस्ते समान समस्ते भगवान अंश समस्त अधिकार अच्छी भगवान भजन करने यही जगत रे विभिन्न प्रकार भेदभाव सब रोचे सांसारिक नीति सब किंतु संसार ऊर्ध्व स्थिति होची पारमार्थिक जगत वैकुंठ जगत जाऊ कहला से जगत रे जो पदार्पण करती हरिभजन करती तांकर देह अभिमान जदि नष्ट हो देखिए समस्ते पूज्य नमस्य वंदनीय हो सब निजठू छोट जड़े आसलते सी भी पूज्य हो भितर पूज्य वस्तु अच्छा अभिमान किसी रही तार भागवत श्लोक अच्छी ब्राह्मणे पूजने स्तोने ब्राह्मण अहर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रक पंडित मत यहाँ पंडित मान मत समान भाव ब्राह्मण मत शूद्र को पूजा करियो शूद्र भी ब्राह्मण को पूजा करियो अक्रूरे क्रूर को पूजा करियो अक्रूर और क्रूर चैव समुद्र अक्रूर हो कि क्रूर हो
ଜଣେ ସାଧୁ ହେଉ କି ଜଣେ ଚୋର ହେଉ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ କି ଶିଷ୍ଟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସମସ୍ତେ କାହାରକୁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କିଏ ଛୋଟ ହେଉଛି, କିଏ ବଡ଼ ହେଉଛି, କିଏ ପୁରା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରୁଛି, କିଏ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ, ଏଇ ବିଚାର ଆସିଯିବ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଇଛି। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभ्यस्तिनी स्वपाके च सुनिचय पंडित समदर्शिन। पंडित मानक समदर्शी भाव आसो। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनम्रता संपन्न युक्त ब्राह्मण कहगला। गाई, हाथी, चंडाल बा श्वान, ये समस्त को पंडित माने समान दृष्टि देखते। कहीं समस्त भितर भगवत सत्ता रही। समस्ते जीवात्मा परमात्मा तांक पाखरे अछंती, भगवान के अंश समस्ते। आत्मार जीवात्मार कौन सी जाति नुहे, जीवात्मार कौन सी वर्ण नुहे, जीवात्मार कौन सी लिंग नुहे। जीवात्मा तो भगवान के अंश, चिन्मय अंश। यही दर्शन आसते पंडित मानकर अनेक जन्म पर सुविचार आसे। तापर वर्णाश्रम वैधि भक्ति। वर्णाश्रम वैधि भक्ति कौन कहते? निरीश्वर नैतिक जीवन जेमत वर्णाश्रम धर्म रूप शेषर नैतिक जीवन उदय ताहाते विलीन हैया निर्दोष भाव परिणति लाभ करे। तद्रूप शेषर नैतिक जीवन वैधि भक्तिर उदय वैध भक्तिर जीवन रे पूर्व दोष शून्य हैया एक अपूर्व परिणति लाभ करे। प्रथम कहले निरीश्वर नैतिक जीवन। किछि लोक अछंती जगत रे निरीश्वर अनैतिक तलस्तर लोक मान, जो मानकर कौन सी सदाचार नाई, जो माने कौन सी नीति नियम नाई, अनैतिक कहगला। किछि मानंतिनी विधि विधान और निरीश्वर ईश्वर विश्वास जो मानकर नाई, माने संपूर्ण नास्तिक, ईश्वर को विश्वास करंतिनी कि कौन सी नीति नियम न थाए। एमान तो पशुवत जीवन मानकर, एमान जो शबर पुलिंद ये सब लोक मान जो माने सभ्यतार दूर रे मानकर कौन सी ज्ञान न थाए। ताठ उन्नत हो निरीश्वर नैतिक। किसी लोक अछंती जो माने ईश्वर को मानती नहीं, ईश्वर सत्ता को, किंतु नीति नियम पालन करते बेसी। बहुत नीति नियम निष्ठा निघा ये सब बहुत देखते, किंतु भगवान के प्रति तांकर विश्वास नहीं, भगवत सत्ता को विश्वास तांकर नहीं। से माने कौन करते? वर्णाश्रम धर्म रूप शेषर नैतिक जीवन। जो वर्णाश्रम धर्म है शेषर नैतिक माने ईश्वर विश्वास भी अच्छी और नीति नियम भी रही। यही वर्ण आश्रम धर्म रूप जीवन जो उन्नीत हे, जो माने नास्तिक ही आंती, जो माने कौन सी नीति नियम जो मान करना है, से लोक मान जदि वर्णाश्रम धर्म को पालन करेंगे, तारे धीरे धीरे तांको भीतर थिया जो नास्तिकता भाव, निरीश्वर भाव बा नष्ट हो शेष निर्दोष भाव से माने लाभ करेंगे। से प्रकार शेषर नीति जीवन तापर जो माने भगवान को मानुचंती और नीति नियम पालन करुचंती, से लोक मान को जीवन जदि वैधि भक्ति एमान जदि भक्ति जीवन पालन करेंगे वैध भक्त जीवन रे पूर्व दोष शून्य है एक अपूर्व परिणति लाभ। एमान मध्य वर्णाश्रम धर्म कौन सी दोष आगे पाखे रही माने उन्नति पाहाच पाहाच उन्नति कथा कहला। जदिन पर्यंत समाज रे जड़े कौन सी नीति मान नथुवो, कौन सी भगवान को सत्ता को मान नथुवो, से जीवन पशु जीवन। ताठ उन्नत जीवन कौन सी नीति नियम मानुथुवो किंतु भगवत विश्वास नथियो, सेमान जदि वर्ण आश्रम धर्म को जदि ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे तांकर पूर्व जीवन जो निरीश्वरता कटिजिव, भावटा विश्वास आसो भगवान
ଭୋଗ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତାଙ୍କର। ବୋଲେ ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଉ କି ବିପ୍ର ହେଉ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉ କି ବୈଶ୍ୟ ହେଉ। এই ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତିକି ଆଚରଣ କରିବେ, ବୈଦିକ ଭକ୍ତିକି ଯଦି ଯାଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଜନିତ ଯେତେ ଦୋଷ ରହିଛି ସେ ଦୋଷ ସବୁ କଟିଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଏଠି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କହିଦେଲେ ଠାକୁରଜୀ ଏଠି। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମୀର ଈଶ ଭଜନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୈତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିର ସମକକ୍ଷ ରୂପେ ছিল। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମଧୀନ ଜଣେ ଜଣେ କି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଈଶ ଭଜନ, ଏଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଜନଟାରେ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ଏ ଭଜନର ଅନନ୍ୟ ଭାବ ନଥାଏ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୀତିରେ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି, ହଁ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେବା କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହରିଭଜନଟା, ଏଇଟା ତ ନିତାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ବୁଝନ୍ତିନି ସେମାନେ। ସେଠି ନୀତି ଭଳି, ଯେମିତି ନୀତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ଗୋଟେ ନୀତି, ଲଘୁ ଶଙ୍କା ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା କଲେ ଶୌଚ ହଟା ଗୋଟେ ନୀତି, ଏସବୁ ନୀତି କୁହାଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ଗୋଟେ ନୀତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ଧର୍ମର ସନ୍ନିବେଶ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଭଜନକେ ଜୀବର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଭଜନଟା ନୀତି ରୂପରେ ରହିବନି, ଈଶ୍ୱର ଭଜନଟା ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଯିବ, ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଈଶ ପୂଜା ଅଛି, ଭଜନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୌଣ ରୂପରେ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା, ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, ସବୁ କାମ ସାରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, କିଏ ଅଫିସକୁ ଯିବ, କିଏ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, କିଏ କର୍ମକୁ ଯିବେ, ଶେଷରେ ଠାକୁର ପହଡ଼ ଖୋଲିବ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ଏଇ ପ୍ରକାର ବା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଧୁଡ଼ଧାଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଈଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗରେ ପାରମାର୍ଥିକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ହରିଭଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଈଶ ପୂଜା ମାନେ ହରିପୂଜା ବା ଈଶ୍ୱର ପୂଜାଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ଧର୍ମର ସନ୍ନିବେଶ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଭଜନକୁ ଜୀବର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନତା ଅର୍ପଣ କରେ। ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭଜନଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ଜଗତରେ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ହରିଭଜନ, ଈଶ୍ୱର ଭଜନଟା। ଏଇଠି ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହେଉଛି, ପୂଜା ବି କରାଯାଉଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ନନାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦରମା ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇତେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପୂଜା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି କରେ, ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକୁ କରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି, ଗୋଟେ ସେମାନେ ଖାଲି ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ଭଜନ ଆଉ ସ୍ମାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଭଜନ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ନା ବିସର୍ଜନ କେବେ କରେନି, ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ କରେ, ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ କରେ। ଆବାହନ, ୱେଲକମ୍। ଆବାହନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଉ ଥରେ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବେ। କରନ୍ତି ନା ସେସବୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଅଭିଭୂତ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଗତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀତିକେ ଈଶ ଭଜନର ଦାସ ରୂପେ ଗଣନା କରିବା থাকে। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଗତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି,
ईश भजन दास रूपे गणना करे। ईश भजन भगवान भजन आनुगत्य दास रूप से नीति नियम रही। जदिओ प्रथम दृष्टि यही परिवर्तनटी को अति सामान्य बोली बोध हुए, किंतु जे समय निष्ठा प्रबल हो थके प्रथम जीवन के आर एक परम उत्कृष्ट आकृति प्रदान करे। प्रथम दृष्टि देखा गले ये जो परिवर्तन है वर्णाश्रम धर्म जो ईश्वर भजनटा सामान्य बोली कह जाए, प्रथम सामान्य जस्ट पूजा करती से मैंने, कि जिते निष्ठा आसीज ना से देखियो परम उत्कृष्ट लाभ हम। ये ठाकुर ही निजर सर्वश्रेष्ठ निजर निकटतर बा इष्ट ए भाव में प्रतिष्ठित हे। वर्णाश्रमीर जीवन वैध भक्तर जीवन एक अपूर्व पार्थक्य लगता है। एथिपाई समाज रे जो माने वर्ण आश्रम भितर रही शास्त्रानुमत भाव जीवन को परिचालना करछन्ती सेमानक जीवन आ गोटे वैध भक्तर जीवन जी भगवान को पाखरे समर्पित जो माने एमानक जीवन भितर बहुत गोटे अद्भुत पार्थक्य लक्ष्य करा जाए। जड़े ड्यूटी करी करे जड़े ड्यूटी नुहे तार यहाँ कर्तव्य यहाँ निजर प्रिय ये भगवान तार निजर होता ये निजर ठाकुर बोली पूजा करे। अन्य जड़े जमी जड़े ऑफिस रे कार्य करूथो ऑफिस रे जड़े पिओन थी से कार्य करूथो सेवा करूथो काम करूथो किंतु घरे भी से करूथो ऑफिस रे कार्य से निजर भी भावी करे से ड्यूटी भावी से करे। सरकार कमाल दरिया में डाल ना ड्यूटी तार दरा मिलले गला दरा न मिले बंद कर दो से स्ट्राइक करियो केते कौन हंगामा करियो छाड़ दी कड़े पलाय ट्रांसफर हो जाए प्रमोशन हो जाए से सब कर्तव्य से तार ड्यूटी सेटा हो गला। किंतु जिते से कर्म जो घर को फेरती घरे जो कर्म करती से तार कर्तव्य ना से तार धर्म हो जाए सेटा कहीं सब निजर लोक अच्छा पुओ झी स्त्री सब ऑफिस के निजर लोक ना स्टाफ हो जाते से प्रकार जो मैंने वर्णाश्रम धर्म ईश पूजा करती भजन करती एम ड्यूटी से नीति गोटे हाँ करिया दरकार ठाकुर पूजा टी सोमवार दिन टी ईश्वर मंदिर जा दरकार ना कौन शनिवार दिन टी नृसिंहदेव शनिदेव पाख जा दरकार गुरुवार लक्ष्मी पूजा करिया दरकार ये सब ड्यूटी नीति। किंतु भक्त नीति पालन करेनि भक्त तार से धर्म पालन तार वृत्ति हूँ भगवान को भजन ये कहते भगवान तार निजर होता ये ऑफिस रे सेवा करा कैनि एथि निजर प्राण देकी सेवा करे गोटे भक्त भक्त जीवन आ वर्णाश्रम धर्म जीवन भर यहाँ तफा टाइम टाइमटा के टायर्डनेस संस्कार ना मान टायर्ड कौन पत्थर खोल ना कौन समस्त तो एका समय तो शोच एका समय तो खाऊ तो सेम सेम समान समान ना कौन समान खाऊ शोच भी टाइम तो बंद हो उठुच तो से तुम शोच मान कार गला निजर बहुत संस्कार